Welcome class 8. Hope you will be fine. Students, here's your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start unit number 3A. Children understand him. Children understand him. First of all, we will discuss something about the poet of the poem. So come on page number 59 about the poet. Tawfiq Rafat was born in Sialkot and educated at Dehradun, Aligarh and Lahore. He is traditionally thought of as the founding father of poetry in English in Pakistan. Tawfiq Rafat has not only made his mark in the subcontinent, his work has also appeared in university anthologies and is included in secondary school and university curricula in Pakistan, USA, Australia and Africa. Tawfiq Rafat has also written a play in verse, The Foothold, unpublished, which was published by the GC Dramatic Club, Lahore. Rafat's poetry encapsulates profoundly the essence and reality of Pakistani culture and life. Children understand him is a perfect example of the ease with which Tawfiq Rafat manipulates the English language to express Pakistani life, atmosphere and culture, and yet appeals to a universal readership. Tawfiq Rafat passed away on 2nd August 1998 at the age of 71 in Lahore. Now come on page number 58. Here are some side words. First of all, we will discuss them. Hospitality, kindness in welcoming strangers. Humor, to have compiled with the wishes of someone. Inadequate, not enough. Intact, remaining sound. Secure, whole or uninjured. Relied on, to have faith or confidence placed on, depended on. Revoke, withdraw, recall or reversed. Self-respect, a feeling of pride and confidence in one's own qualities and worth. Students, the main theme कह सकते हैं आप कि main theme of this poem is the grandchildren's love and their respect towards their grandparents. कि आज की जो पोएम हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो प्यार है, जो उनको रिस्पेक्ट देने वाली उनकी बात है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में कि कैसे बच्चों का प्यार और उनकी रिस्पेक्ट उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस का हामिल है या कैसे वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि व्हेन देयर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड, जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो जो उनके बच्चों का, उनके बच्चों के बच्चों का नहीं बल्कि उनके जो ख़ुद के बच्चे होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है अपने पेरेंट्स की तरफ, हम उसके बारे में भी इस पोएम में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम, बच्चे उन्हें समझते हैं। एंड ओनली दिस हैज़ केप्ट इंटैक्ट होता है सिक्योर रखना, महफूज रखना, और यही चीज़ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देती है। हिज प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी जो प्राइड है, उनका जो फ़ख्र या गुरूर है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि उनकी जो डिग्निटी है। फीलिंग ऑफ प्राइड मतलब कि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है, इसको ये चीज़ तहफ़्फ़ुज़ देती है कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, उनको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ है या फर्स्ट स्टैंजा है, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम वी आर टोल्ड, हमें बताया जा रहा है डैट द ओल्ड मैन इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ यंग चिल्ड्रन, his grandchildren understand him, they love him, and it is the love and understanding of his grandchildren which has kept his pride and self-respect secure. It means the old man still has pride and self-respect left. They still love and value him. It is their love and respect that is the source of great courage for old men. Okay students, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आके हम स्टैंजा नंबर 2 की तरफ आते हैं, मीन्स कि जो हमारे नेक्स्ट आगे बांधनी है लाइन्स उनकी तरफ। अदरवाइज ही इज़ अ ड्राई स्ट्रीम बैट लिविंग ऑन मेमोरीज एंड इन एन एजुकेट पेंशन एंड द हॉस्पिटैलिटी नाउ गिवन रिवोक्ड ऑफ हिज सन्स एंड डॉटर्स। वो कहते हैं कि अदरवाइज़ उसको क्या कहा जाता है, ड्राई स्ट्रीम बैट। ड्राई स्ट्रीम बैट यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है कि उसको एक पुरानी सूखी नदी से तशबीह दी जाती है। लिविंग ऑन मेमोरीज, जो कि क्या है, अपनी यादों पे ज़िंदा है। एंड एन इन एजुकेट पेंशंस एंड दी हॉस्पिटैलिटी मीन कि उसको जो
तवज्जो चाहिए, जो उसको फ्रेंडली रिसेप्शंस जैसे हम गेस्ट को देते हैं उनको वेलकम करने के लिए, इस तरह से कहते हैं कि जो बूढ़े या बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें उतनी ही तवज्जो चाहिए होती है जितनी हम दूसरे बंदों को दे रहे हैं। नाउ गिवन रिवोक, अब वो क्या होती है, नहीं दी जाती, रिकॉर्ड नहीं की जाती, उसको उनको नहीं मतलब कि उनके साथ इस तरह से पेश आया जाता ऑफ हिज सन्स एंड डॉटर्स, उनके अपने बच्चों, बेटों और बेटियों की तरफ से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट इज़ द लव एंड एसोसिएशन ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन विच मेक हिज लाइफ वर्थ लिविंग, कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का जो प्यार है वो उसकी ज़िंदगी को वर्थ लिविंग बनाता है। अदरवाइज ही इज़ अ ड्राई स्ट्रीम बेड, अदरवाइज़ वो क्या है, एक ड्राई स्ट्रीम बेड है। हियर पोइट यूजेस द मेटाफर ड्राई स्ट्रीम बेड। द पोइट कंपेयर द ओल्ड मैन टू अ ड्राई बेड ऑफ स्ट्रीम। वो कैन से द पोइट इज़ टेलिंग अस दैट ओल्ड मैन हैज़ led his life, its course has been run, and now the old man is as useless as a dry stream. We can see that according to poet, old man has led his life, its course has been run like that of stream or river, and now it is dry for their children. Okay students, next इट्स कोर्स हैज़ बिन रन मीन के अब वो क्या है, अपने बच्चों के लिए वो एक सूखी हुई नदी या तालाब की तरह बन गया है, या किसी ऐसे दरिया की तरह बन गया है जो बिल्कुल सूख चुका है और यूज़लेस है। इसी तरह उनका जो बूढ़ा वालिद है उसकी ज़िंदगी भी उनके लिए एक ड्राई स्ट्रीम बेड की तरह होगी है। लिविंग ऑन मेमोरीज, जो कि अपनी यादों पर जिंदा है। रेफर टू दी थाट्स एंड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड मैन, ही हैज़ नो एक्टिविटी सो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रिकॉलिंग। उसके पास अब कोई भी काम नहीं है करने के लिए इस समय में, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर टाइम अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसको रिकॉल करने में ही गुजार देता है। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रिकॉलिंग हिज पास्ट मेमोरीज एंड द लव एंड अटेंशन दैट इज़ गिवन टू द ओल्ड मैन फ्राम हर सन्स एंड सिस्टर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक जनरल ट्रूथ की तरफ इशारा किया गया है। हियर द जनरल एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स इज़ डिस्क्राइब्ड, कि जो बच्चों का अपने बूढ़े वालिदैन की तरफ एक मतलब कि एक उनका रवैया होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। समटाइम्स दे आर काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, कहीं जो कभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो औलाद है या बच्चे अपने वालिदैन जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए केयरिंग होती है। एंड समटाइम्स दे आर हार्श एंड रूड टूवर्ड्स देम, और कई जगह पे या बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हार्श या रूड बिहेव करते हैं। दे कंसिडर इट हार्ड टू पुट अप विद देयर ओल्ड पेरेंट्स, और उनके लिए अपने पेरेंट्स के साथ बात करना या उनके साथ रहना वो क्या होता है, हार्ड होता है। बिकॉज वी कम्स टू नो डैट द ओल्ड मैन प्रॉबेबली गोज़ फ्राम वन चाइल्ड हाउस टू द नेक्स्ट, कि जो बूढ़ा वालिद है वो अपने एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर जाता है। बिकॉज पुटिंग अप विद हिम इज़ अ हार्ड टास्क फॉर देम, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अपने बूढ़े वालिद के साथ गुजारा करना या ज़िंदगी गुजारना, लाइफ स्पेंड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आगे देखिए जी, स्टैंजा नंबर 3 में, एन ओल्ड मैन हु मस्ट बी ह्यूमर्ड एंड सेंड टू हिज रूम, एक बूढ़ा आदमी जिसे डील करना चाहिए काइंडनेस के साथ, उसको कमरे में भेज दिया जाता है। व्हेन देयर आर गेस्ट अबाउट, जब घर में या उनके घर में कोई भी मेहमान आते हैं। बट ऑलवेज टू बी रिलाइड ऑन, और उसको डिपेंड करवाया जाता है। टू कीप द चिल्ड्रन अपस्टेयर, कि उसकी कस्टडी में भेज दिया जाता है बच्चों को अपस्टेयर्स की तरफ, आउट ऑफ मिसचीव्स, कि वो जो उनके गेस्ट आए हैं वो उनकी नॉटीनेस से, उनकी शरारतों से महफूज रह सके। इट मीन्स द मैन हैज़ ग्रो ओल्ड, अब आदमी बूढ़ा हो चुका है। ही हैज़ बिकेम फिजिकली वीक, ही इज़ अनेबल टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ प्रॉपरली, ही नीड्स मच केयर एंड अटेंशन of his children. When there are some guests in the house, the old man is sent to his room, so may he will not bore visitors with stories of his life. His sons and daughters don't like him to come in front of the guest. They think of him a bad impression on guest. वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिद का अपने गेस्ट के सामने आना पसंद नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग के उनके वालिद उनकी जो गेस्ट हैं उनको अपने टाइम की स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे और हमारे गेस्ट हैं वो बोर हो जाएंगे। तो वो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि व्हेन देयर आर गेस्ट अराइव इन द हाउस, वो उस बूढ़े आदमी को अपने रूम में भेज देते हैं। एंड दे आल्सो सेंड द चिल्ड्रन
अपस्टेयर्स इन द कस्टडी ऑफ ओल्ड मैन। और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी अपने बूढ़े वालिद की कस्टडी में अपस्टेयर्स भेज देते हैं, ऊपर वाली स्टेज पे भेज देते हैं। मीन्स कि ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन देयर पेरेंट्स इंटरटेन द गेस्ट द ओल्ड मैन लुक्स आफ्टर देम, कि जब तक उनके पेरेंट्स उनके गेस्ट को ट्रीट करते हैं या डील करते हैं, वो क्या करेगा, बूढ़ा आदमी उनके बच्चों की केयर करेगा। द चिल्ड्रन प्ले विद दी ओल्ड मैन, वो क्या करते हैं कि बच्चे अपनी तमाम तरह शरारतें क्या करते हैं, उस बूढ़े आदमी तक महदूद कर लेते हैं और उसके साथ ही वो शरारतें भी करते हैं। येस दे अंडरस्टैंड हिम, हाँ वो उसे समझते हैं। फ्राम मैन रोर एंड फ्रेंडली, मीन की मैन रोर के लाउडली किसी को बुलाना। पंचेस टू द चेस्ट पे पंच करना। एंड डैम्प किसीज ऑन स्क्रब चीक्स, और डैम्प किसीज करना, वेट किसीज करना, और स्क्रब चीक्स, स्क्रब होता है क्लीन चीक्स भी होगा, या निशानों से भरे हुए चीक्स भी कह सकते हैं हम। द सेल टू द हार्बर ऑफिस नीज, सेल होता है कि मूव करना, हार्बर होता है कि सेफ प्लेस महसूस करना। लास्ट पैराग्राफ में हमें अगेन बताया जा रहा है कि द पोइट टेल अस दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देयर ग्रैंडफादर, दे लव हिम, द ग्रैंडफादर कॉल्स दम लाउडली, उन्हें ऊंची आवाज़ से बुलाता है। द चिल्ड्रन गिव्स द ओल्ड मैन फ्रेंडली पंचेस टू हिज चेस्ट, वो उस ओल्ड मैन को फ्रेंडली पंचेस देते हैं उसकी चेस्ट पे। द ओल्ड मैन इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। दे आर वेरी फ्रैंक विद हिम, दे गिव पंचेस टू हिज चेस्ट। द ओल्ड मैन गेव देम wet kisses on their scrubbed cheeks. Old man gives them the wet kisses on their scrubbed cheeks. The children's cheeks are scrubbed by their parents when they are dirty. जब वो dirty होते हैं, गंदे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें मार पीट करते हैं, तो उनकी उन्हीं चीक्स पे उनके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उन्हें किसेस करते हैं। मीन्स दे फील सेफ, और वो क्या करते हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनके नीज़ पे क्या करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके नीज़ पे बैठ के उनके साथ शरारतें करते हैं, और वो क्या महसूस करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कंपनी को सेफ़ महसूस करते हैं। मीन कि वो उसके घुटनों पे बैठते हैं और ख़ुद को महफूज ख्याल करते हैं। मीन्स के when the children sail to his knees when they play with him and they feel safe on his knees, वो उसके घुटनों में बैठते हैं और उसको सेफ ख्याल करते हैं। they feel safe with him and find his company friendly, कि वो उसकी कंपनी को क्या महसूस करते हैं, फ्रेंडली महसूस करते हैं, उनके साथ खेलना कूदना या बातें करना उन्हें पसंद है, और वो उसके साथ की जो कंपनी है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और वो जो उनके ग्रैंड फादर हैं वो भी अपने बच्चों की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने यूनिट नंबर 3A जो कि हमारी इस मिड टर्म के स्टूडेंट्स लास्ट यूनिट है, इसमें हमने डिस्कस की है आज की रीडिंग। आपने भी इसको 2 और 3 टाइम दोबारा रीड आउट करेंगे, देन आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।